and also like the companies that are doing will be of varying size, very small companies to the very big companies. Also the type of activities they do might range from something from philanthropy or donations to say even community involved projects that is being implemented. And some of the studies that have been done recently suggest that most of these activities falls into something about 30 different themes. And some of these key themes are like say health, education, community development, or benefiting some of these people who needs support. So you have a range of issues which the companies try to cover, but there is also a lot of misconception about what can be done under the corporate social responsibility, because sometimes what happens is company think that spending time with maybe with the orphanage or just donating it, or just doing something which they think that maybe setting aside some time is a corporate social responsibility. But this is maybe considered as one element, but till the time they incorporate it into their entire corporate philosophy, or the way they work, the way they think, and the way they imbibe it into the culture, till that time it can't be exactly called as a corporate social responsibility. But of course there is a lot of changes are coming about, and I think over a period of time you will see a lot more refinement, a lot more changes. It would evolve into a more mature, and the companies also will take more serious interest in implementing the corporate social responsibility as one will desire it. So. डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं, CSR क्या है? CSR, so basically CSR means it's a corporate social responsibility. So here obviously the corporate means the company, whether it's big or small. It could be small to micro to mini to whatever it is. And the social, obviously we know that it is something to do with the society, and the responsibility is being responsible towards people. If you look at it in a very specific way, it actually means that company taking responsibility for people, the planet, and also the profit. So it's no longer the companies will be looking after or doing activities only to maximize the profit. They also need to adhere to certain way of doing things in such a way that it is not going to adversely impact the society as well as the environment. Rather, they will try to find ways and means to benefit people who are in the society, and as well as reduce adverse impact on the environment. So if you look at it that way, that it is basically a holistic aligning of various activities which the company does towards benefiting or positively impacting the planet, earth, and their profit. This is how it is. And sometimes, of course, it's also known as triple bottom line. And increasingly you will find it, most of the companies report will talk about the CSR activities. So this is what the CSR is about. देखिए, हम कहां से कैसे आपके लिए सारी जानकारियां लाते हैं। हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है। कल फिर इसी सेगमेंट में हम CSR के बारे में बात करेंगे। हम इस सेगमेंट में हर बार कुछ काम की बातें करते हैं जो आपके जीवन से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। तो हमसे जुड़े रहिए इसी शो में इसी समय पर। हम कल फिर मिलेंगे, तो देखते रहिए हमारा ये शो मंडे टू फ्राइडे। अब एक खास खुशखबर हमारे उन अचीवर्स के लिए। आप किसी भी बिजनेस या कारोबार को चला रहे हो जिसे आपने अपनी मेहनत और लगन से बढ़ाया हो, कंपनी हो या इंडस्ट्री, इनोवेशन मीडिया आपको इस शो के द्वारा सम्मानित करने जा रहा है। यह पुरस्कार न सिर्फ आपके हिम्मत को बढ़ावा देगा, बल्कि आपके समाज में, आपके कारोबारी दुनिया में आपके नाम को रोशन करने का जरिया भी बनेगा। आप अपने नॉमिनेशन के लिए संपर्क करें। तो दोस्तों, ये मौका अपने हाथ से जाने न दें। भारत के सुशिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार जिन्हें काम की तलाश है,
इनोविजन मीडिया लेके आए हैं उनके लिए मौका। नौकरी पाने का। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर कॉल करें 022-2871 0320 और 022-2871 0321 या लॉग इन करें www.innovisionmedia.in पर। हमारे द्वारा प्रदान की गई ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। आपके विभाग की क्या नई योजनाएं हैं? अभी तक का एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा मिला है और टैक्स पेयर का भी बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। और जब भी हमने ये सर्विसेज शुरू किया, एवरी टाइम हमने टैक्स पेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया था। उसकी वजह से डिपार्टमेंट का जो भी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है वो बहुत सक्सेसफुल हो गया है। तो अभी फ्यूचर में भी हमारे बहुत बड़े प्लान्स इसमें हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट प्लान है डेटा वेयरहाउस और बिजनेस इंटेलिजेंस का प्लान है। तो ये जो इनिशिएटिव है वो पूरे नेशन में पहला सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है जो ये इनिशिएटिव ले रहा है। वो भी हम बहुत बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा टैक्स पेयर को हेल्प देने के लिए एक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें डीलर का जो भी एप्लीकेशन है उसका स्टेटस उसको अलग अलग फेज में उसका स्टेटस उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके अलावा ये जो CST एक्ट के अंदर डिक्लेरेशंस है वो अभी फिजिकली देते हैं, हम फिजिकल फॉर्म में रहते हैं। उसकी वजह से वो कभी डिस्ट्रॉय होते हैं, कहीं ट्रांजिशन में वो कहीं भी गुम जाते हैं। तो ऐसी हालत में टैक्स पेयर को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है वो दूसरा डिक्लेरेशन मिलने के लिए। तो उसकी जगह हम अभी इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन का स्कीम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसमें फिजिकल फॉर्म्स देने की ज़रूरत नहीं रहेगी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो हमारे वेबसाइट पे उसको मिल जाएगा एंड वो वहाँ पे हमेशा के लिए रहेगा। तो उसमें वो कहीं भी मिस होने का या जो भी चांस है वो सब चांस निकल जाएगा। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है? व्यापारियों को जो भी ई सर्विसेज है वो एक महत्वपूर्ण बदल डिपार्टमेंट के वर्किंग में आ रहा है। उसकी वजह से व्यापारियों के शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और वो प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे के रखी है। व्यापारी को अलग अलग हेल्प डेस्क के नंबर दे दिए हैं। वो हेल्प डेस्क के अगर वो टेलीफोन से बात करता है तो वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स है वो उसका जो भी डिफ़िकल्टी है वो सॉल्व करते हैं। उसके अलावा डीलर्स हमारे यहाँ ईमेल भेज सकते हैं। वो ईमेल देख के हमारे ऑफिसर्स उसका रिजॉल्व करते हैं और उसको वो हिसाब से रिप्लाई भी देते हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट के अलग अलग 38 लोकेशंस है, वहाँ पे हमने हमारे हेल्प डेस्क रखे हैं। वहाँ हमारे सब ट्रेंड जो मैन पावर है वो तैनात किया हुआ है। जो भी टैक्स पेयर वहाँ पे जाता है उसका सभी प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। क्या आप इसमें SMS और ईमेल की सुविधा प्रोवाइड करेंगे? हाँ, उसमें हम अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे बल्क SMS से और ईमेल से भी हम वो इन्फॉर्मेशन डीलर्स को भेज देंगे। तो वो अगर कभी ट्रांजिट में है, कहीं ट्रैवल कर रहा है तो वो हालत में भी उसको मैसेज मिल जाएगा और उसके ऊपर वो एक्शन ले सकता है। व्यापारियों के लिए वेबसाइट के जरिए क्या सुविधा उपलब्ध है? व्यापारियों को हमने जब भी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ले लिया तो शुरू से ही हमने सभी करदाताओं को उसमें इन्वॉल्व किया है। तो उसमें हमने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया था जिसमें कि जो उनके कर सलाहकार रहते हैं उनके भी प्रतिनिधि थे, वैसे टैक्स पेयर जो उनके भी प्रतिनिधि उसमें शामिल किए थे और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उसमें शामिल थे। और ये जो वर्किंग ग्रुप है वो एक कोहेसिव ग्रुप जैसे वो सभी स्कीम्स के ऊपर काम करता था। उसमें हमने टैक्स पेयर्स के सब जो भी सूचनाएं हैं उसका हमने अंतर्भाव किया था और अकॉर्डिंगली हमने ये हमारा ई सर्विसेज जो है इम्प्लीमेंट किया। उसकी वजह से उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हमने उसी स्तर पे सॉल्व करने का कोशिश किया था। उसके बाद में इनिशियली जो हमने इस सर्विसेज शुरू किया वो हमने वो वॉलंटरी बेसिस पे दिया था, मतलब वो कंपलसरी नहीं किया था। और वो ट्रायल बेसिस की करने की वजह से उसमें जो भी प्रॉब्लम थे वो हमारे सामने आ गए, वो सभी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए और उसके बाद ये बहुत सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। और उसकी वजह से करदाताओं का भी इसमें सहभाग बहुत अच्छा है। अभी वैट एक्ट के अंदर जितने भी करदाता हैं, 6 लाख के आसपास करदाता हुआ है, सभी करदाताएं बहुत सक्सेसफुली ई रिटर्न्स अपलोड कर रहे हैं।
और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ई पेमेंट जो है वो भी ये सभी टैक्स पेयर्स प्रॉपरली करेंगे। आसमान को छूना है, आगे बढ़ते जाना है, मुट्ठी में कर ले जहां, अब पीछे नहीं हटना है, just come along।